I have solved all 5 coding question, all aptitude question and well performed in the communication round of Cognizant. But due to this reason, I did not get selected in the Cognizant. दिस वीडियो विल नॉट बी टू लॉन्ग बिकॉज आई नो कि आप सभी के प्लेसमेंट चल रहे हैं और अब अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हे हाय गाइस, माय नेम इज तिलक एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल पीडीएफ फॉर ज्ञान. So in this video, I will discuss 2 mistakes that I have made in my Cognizant test, and so please don't repeat this mistake in your Cognizant assessment test. My first mistake is that I have not attempted all the aptitude question. I have solved like just 19 question and not just attempting remaining question. Like मैंने जो बाकी के question उन पर तुक्का भी नहीं मारा. So this was the main reason of not getting selected in Cognizant. Because मैंने जो मेरा aptitude मतलब मेरा जो coding round था, मैंने वो पूरा का पूरा अच्छे से solve किया था. पर मैंने जो aptitude का round है, उसमें सिर्फ 19 question solve किए थे and आई नो कि उसमें से 15 क्वेश्चन एटलीस्ट बराबर होंगे, पर आई डोंट नो कि बाकी क्वेश्चन बराबर है या नहीं. So this was the main reason of not getting selected in my Cognizant interview. In order to crack this round, you must solve 18 to 20 question and attempt all the remaining question. Like तुक्का भी मार सकते हैं, पर सारे के सारे अटेम्प्ट करो. आई नो कि ये टेस्ट ऑनलाइन चल रही है और सभी के सभी लोग चीटिंग कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द लोग तो चीटिंग कर ही रहे हैं. बट आप इस टेस्ट में अपने इथिक्स जो है, जो भी कुछ है, अपना साइड में रखिए. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे तो दूसरा कोई और कर रहा है और प्लेसमेंट ले रहा है. आखिर में क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेसमेंट ही है. बाकी आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपने टेस्ट कैसे पास किया और वट एवर एल्स, because everyone is doing. So if you are not doing, so it's your fault and you are not getting selected. Okay, this has played a major role in my case. Okay, so please whatever else is needed, please do that. ये तो होगी मेरी कुछ 2 मिस्टेक्स, पर बाकी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. जो पहली मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हो, प्लेगरिज्म. यानी क्या होता है कि आप कहीं की चीज कहीं और कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं विदाउट द नीड ऑफ ऑथर. मतलब आप ऑथर को बिना पूछे कोई चीज ले रहे हैं और वहां पर पेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड प्लेगरिज्म. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कर रहे हैं. जो उन्होंने क्या करते हैं, वो कोडिंग का जो क्वेश्चन होता है चैटजीपीटी से ऐसे ही ले लेते हैं, बट वो क्वेश्चन जब वहां पर वो राइट करते हैं तो वहां पर प्लेगरिज्म लग जाता है. मतलब जो सिस्टम है शायद उसको पता चल जाता है कि आपने कहीं से कोड कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया है. सो इन केस कंपनी अगर ये देखती है तो दिस विल बी अ बैड पॉइंट फॉर यू एंड दिस विल अ मेन रीजन दैट यू विल नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन द कंपनी. एंड द सेकंड रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव सॉल्व लाइक 2 to 3 क्वेश्चन इन देयर कोडिंग असेसमेंट. But this is a very negative point for you because I have solved all 5 coding question and still I am not getting selected in that Cognizant. So how can you will selected? Like you are just solved 2 to 3 question and many of us student have asked me the question like भैया मैंने 2 कोडिंग के क्वेश्चन किए, एक एसक्यूएल का क्वेश्चन किया है, भैया मैंने 2 कोडिंग के क्वेश्चन किए, मैंने 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन किए, पर कुछ टेस्ट केसेस पास ही नहीं हुए. So this will not get you placed in the Cognizant. Okay, you have to solve all coding question like if you have Java cluster, then you have to solve all 2 coding question to SQL question along with HTML, CSS and JavaScript question correctly. Apart from that, for Python cluster, all 2 coding question, all 2 SQL question and along with all the cloud fundamental question you have to be correct. Okay, this will play a major role in your selection. If you do not this, consider yourself as you are not getting selected. Just consider that because the selection criteria is too high and most of the students like I have in my college 400 students are there and only 23 students get selected. Means you can imagine that how tough is the competition was. You can imagine from that. So please मैंने जो आपको चीजें बताई है वो अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तभी आपका कॉग्निजेंट में जो असेसमेंट है वो क्रैक हो सकता है. अगर आप ये चीजें नहीं फॉलो करेंगे तो शायद आपको इंटरव्यू कॉल आ भी नहीं सकता है. और जिन लोगों का मतलब बाई चांस नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, कंपनियां और आ रही है, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको हो जाएगा. लाइक मैंने भी किया था बट उस दिन थोड़ा बैड लगा था, मतलब थोड़ा बुरा लगा था. आई नो आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड आई कैन क्रैक कंपनीज. सो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो आपके कुछ मिस्टेक्स रही है वो सॉल्व कीजिए, रिजोल्व कीजिए, और जो भी कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज मैं इस वीडियो पर प्लेसमेंट रिलेटेड ऐसी टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहता हूँ. और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पर मैंने सारी की सारी नोट्स और जो भी क्वेश्चंस और आपके जो डाउट्स है वहां पर मैं रिजोल्व करता हूँ. सो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.